Hello, students. Greetings to you. Today we will study the sixth chapter of the book Flamingo, that is Poets and Pancakes. So, let us first of all understand the title Poets and Pancakes. Poets, as you all know, is someone who composes a poetry. In Hindi, we call it Kavi. And pancakes is actually a type of eatable which is cooked in the oven. But here the word pancakes is a proper noun. It is actually the name of a famous cosmetics company. Like in prevailing times, there are certain cosmetics companies. You may be aware of that. L'Oreal, Garnier, Lakme, so on. Similarly, in historical times, in 1940s, 50s, 60s, there was a very famous brand of makeup items. There was a very famous cosmetics company by the name of Pancakes. It was actually a brand name. It is not that eatable. Okay, and this brand Pancakes was very much popular in 1940s, 50s, 60s throughout the world. It was a brand which was widely used by all the film actors, whether Hollywood or Bollywood, during the initial times of filmmaking. The items made by this company was used by all the actors, pancakes. So there were certain items which this company manufactures: lipsticks, potions, lotions, and other types of makeup items. So it is actually a name of a brand of cosmetic items. Now we'll learn something about the author. The author of this chapter is Asoka Mitran. He was born in 1931. A Tamil writer, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. So Asoka Mitran, the writer of this chapter, actually wrote a very exotic book of the name My Years with Boss. And from that book, from that composition, a part has been taken and made as a chapter in this textbook. And in that book, Asoka Mitran describes how the film industries, the movies, affect all the aspects of lives of people. And the studios where the films were made was Gemini Studios, and it was in Chennai. Earlier it was called Madras, but nowadays it's called Chennai. The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. So in those days, in 1940s, all the films, Bollywood films, were made in Gemini Studios. Mostly in those times, films were made in the interiors. It was not made in the exteriors. For example, if you want to shoot a scene in Taj Mahal, so they will construct a phony artificial Taj Mahal inside the studio and they will take the shot from there. They will not go to actual Taj Mahal. So this was the way of filmmaking in those times. Gemini Studios is still there in Chennai, and it signifies its contribution in the film industry. Its founder was S.S. Vasan. So Gemini Studios was actually founded by S.S. Vasan. He was the number one in Gemini Studios in those times, the boss of Gemini Studios. The duty of Asoka Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. So what the author used to do in those studio, he had been given a job. He used to browse through the newspapers and magazines, and he used to cut the important clippings and store them in a file and pile them up in a file and send them to his boss for help or for some aid or for some reference. तो अशोका मित्रन जो राइटर हैं वो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम क्या करते थे, जो 1940 में स्टैब्लिश हुआ था चेन्नई में, और इसने
जो फिल्म मेकिंग की जो शुरुआती दौर था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था स्टूडियो ने। जनरली जो सारी पिक्चरें बना करती थी उस ज़माने की वो जेमिनी स्टूडियोज़ में ही बना करती थी। और जो हमारे राइटर हैं अशोका मित्रन, ये क्या काम करते थे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग को इकट्ठा करते थे फाइल में। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड and some of the clippings were not very clear, so he used to copy them out in a copy, so he used to write them with his own hand in order to preserve those clippings. कई सारी clippings वो अपने हाथ से ही नोट करते थे. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. ऐसा लगता है जैसे बहुत वो एक इनसिग्निफिकेंट, एक बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सा काम करते थे स्टूडियो में, न्यूज़पेपर की कटिंग इकट्ठा करना। कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पेटी जॉब कर रहे हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा वेल इन्फॉर्म थे। उन्हें हर एक की खबर थी कि स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है, कैसे कैसे डायनामिक्स चल रही है, कैसा कैसा इंटरेक्शन चल रहा है लोगों का, हर चीज़ की वो खबर रखते थे, वेल इन्फॉर्म थे। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। और जो चैप्टर हमारी बुक में दे रखा है ये उन्हीं की रचित एक किताब है, माई ईयर्स विद बॉस। उसका एक पार्ट लेकर के ये चैप्टर बनाया गया है कि जेमिनी स्टूडियोज़ में कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे कैसे लोग फंक्शन करते हैं, किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। Now I come to all this. Notice these words and expressions in the text. Infer their meaning from the context. Now there are certain expressions I think it is best to derive their meanings while reading the chapter itself. We should just take out the meanings of all these words when we encounter these words in the chapter, in the text, in the narrative. So it is best that we should not learn them beforehand, otherwise it leads to confusion. So when we encounter these words in the text itself, then I'll explain to you all the meanings of all these words. So let me start with the first paragraph of the chapter. And it is my request, while I'm explaining the chapter to you, please keep your books open, keep a pencil with you, and learn the chapter line by line as I explain to you. Then only you will be able to understand, appreciate, comprehend it nicely and in its true sense. Otherwise, you will go haywire. So let me begin with the first paragraph. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. तो ये बताते हैं अशोका मित्रन जी, जो राइटर हैं, कहते हैं जो पैनकेक है वो एक ब्रांड नेम है, वो मेकअप आइटम्स कॉस्मेटिक कंपनी का ब्रांड नेम है। जैसे आजकल लैक्मे है, लोरियल है, कई सारे आ गए हैं। उस ज़माने में पैनकेक बहुत पॉपुलर था। इवन ऑल द हॉलीवुड एक्टर्स ऑफ दोज टाइम्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स यूज्ड टू कंज्यूम दिस मेकअप पैकेज ऑफ पैनकेक्स। तो जो पैनकेक है ब्रांड नेम है मेकअप आइटम्स का, और जेमिनी स्टूडियोज़ जो चेन्नई में है वो ट्रक लोड्स में इसको ख़रीदता है अपने एक्टर्स का मेकअप करने के लिए। ट्रक लोड्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन मैसिव अमाउंट्स दे यूज्ड टू परचेज द कॉस्मेटिक आइटम्स ऑफ पैनकेक ब्रांड। ग्रेटा गार्बो must have used it, Miss Gauhar must have used it, Vaijanthimala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. Now there are names of some very eminent actors of those times. Greta Garbo, इनके बारे में फुटनोट में दिया गया है कौन कौन थे ये, you can read it. तो ये उस ज़माने के 1940s, 50s, 60s के बहुत फेमस एक्टर्स हैं एंशंट फिल्म मेकिंग के। ग्रेटा गार्बो, तो ये बताते हैं राइटर हमको कि ग्रेटा गार्बो ने इसको यूज़ किया होगा पैनकेक को, कि उस ज़माने में हुआ करती थी। मिस गौहर जो एक्ट्रेस थी उन्होंने यूज़ किया होगा, और वैजंतीमाला जो बहुत ही फेमस हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी उस टाइम की, उसने भी यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री जो काफ़ी लेट टाइम की एक्ट्रेस थी, 90s के टाइम की एक्ट्रेस थी, उनको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि उस ज़माने में 90s में आते आते पैनकेक्स एक्सटिंक्ट हो गया होगा, उस समय ख़त्म हो गया होगा ये ब्रांड। ये तो शुरू में बहुत पॉपुलर था 40s, 50s, 60s, 70s, इवन 80s तक, बट आफ्टर दैट इट लॉस्ट its potency, it lost its presence from the market, and several new brands emerged. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. तो ये ऑथर बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियोज़ था, जो पैनकेक्स की ब्रांड के बहुत सारे आइटम्स ख़रीदता था ह्यूज अमाउंट्स में,
उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था, जहाँ पे मेकअप होता था एक्टर्स का, वो अपस्टेयर्स था, मीन्स फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में, ऊपर वाली बिल्डिंग मंजिल में था। और ऐसा माना जाता है कि जो ये जेमिनी स्टूडियोज़ की बिल्डिंग थी, ये किसी ज़माने में रॉबर्ट क्लाइव वॉज ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट, वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर, उनका स्टेबल हुआ करता था जेमिनी स्टूडियोज़। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनका ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था पहले, और बाद में इसको क्या बना दिया था, जेमिनी स्टूडियोज़ बना दिया गया। अ डोजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेट टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। और अशोकामित्रन जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज़ के अलावा रॉबर्ट क्लाइव की कई सारे और ठिकाने भी थे, रेजिडेंस भी थे उसी शहर में। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. ऑथर बताते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ थी, इट वॉज वेरी शॉर्ट. ही लिव्ड अप टू ओनली 49 years in this world. So during his brief lifetime, he traveled a lot throughout the country. He crisscrossed the country several times. तो उनकी लाइफ बड़ी ब्रीफ थी, और उससे भी ब्रीफ क्या था, उनका मद्रास में जो उनका स्टे था, जो उनका रहना था मद्रास में, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, लेकिन उसी शॉर्ट टाइम में मद्रास में उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया था. रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग. काफ़ी वो घूम लिए थे इधर उधर, काफ़ी बार उन्होंने अपने ठिकाने भी चेंज कर लिए थे, और काफ़ी और चीज़ें भी की थी अपने छोटे से स्टे में. Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. तो अपने ब्रीफ स्टे में उन्होंने काफ़ी बैटल्स, काफ़ी युद्ध भी लड़े अलग अलग कोनों में भारत के, और इसी दौरान उन्होंने शादी भी करी एक मेडिन से. मेडिन मीन्स एन अनमैरिड गर्ल, स्पिंस्टर को मेडिन कहते हैं. और इन्होंने शादी कहाँ करी, सेंट मैरीज चर्च में करी, जो कि कहाँ पे था, सेंट जॉर्ज मद्रास में था, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज. यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज एक जगह थी, एक फोर्ट था मद्रास में, वहाँ पे ये चर्च भी था, और उसी चर्च में रॉबर्ट क्लाइव ने शादी करी. Hope this paragraph is clear. Now I come to next paragraph. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. Now the poet is describing the makeup room of the Gemini Studios, जहाँ पे एक्टर्स का मेकअप होता है, वो किस तरह का उसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर का इंटीरियर डेकोरेशन है, क्या क्या आइटम्स प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं. तो ऑथर बताते हैं कि द मेकअप room resembles a hair cutting salon. It looks like a hair cutting salon, a barber's shop, a beauty parlor, with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. और मेकअप रूम के चारों ओर हर एक एंगल पे लाइट्स लगी हुई हैं, और करीब करीब हाफ अ डोजन, आधे दर्जन वहाँ मिरर्स लगे हैं चेहरा देखने वाले चारों तरफ. They were all incandescent lights, so you can imagine द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप. और जो भी लैम्प्स और लाइटिंग्स हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की बात है काफ़ी, वो सब इनकैंडेसेंट लाइट्स हैं. इनकैंडेसेंट लाइट्स मीन्स दोज हीटिंग अप्लायंसेज, दोज लाइटिंग अप्लायंसेज विच emits lot of heat. For example, bulb. No, not the LED bulb, but the bulb is also an incandescent appliance. Electric heater is also an incandescent appliance. An appliance which emits heat and light together is an incandescent appliance. मीन जिसको जलाने से लाइट तो मिलती है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा निकलती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कहते हैं इनकैंडेसेंट अप्लायंस. तो जितने भी वो बल्ब्स वगैरह लगे थे उस मेकअप रूम में, सब इनकैंडेसेंट थे, मीन्स वो लाइट के साथ साथ काफ़ी गर्मी निकालते थे. तो बोलता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की जो जिनका वहाँ मेकअप होता था, उनको कितना टॉर्चर होता होगा, कितना उनको दुख तकलीफ होती होगी उस गर्मी की वजह से. फायरी मिजरी, नोटिस दीज वर्ड्स. फायरी मीन्स बर्निंग, F-I-E-R-Y. Fiery means the mnemonics is fire, so it comes from the root word fire. Fiery, misery means jalti hui. Misery means some type of botheration or torture or torment or trouble. कोई तकलीफ को मिजरी कहते हैं. तो किस तरह की वो तकलीफ गर्मी से उनको होती होगी जिनका वहाँ मेकअप होता होगा. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. और शुरू में जो वो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज़ का, उसका जो हेड था वो एक बंगाली था, लेकिन जल्द ही वो बंगाली काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी बड़ा आदमी बन गया, और वो स्टूडियो के लायक नहीं रहा. He became too big for a studio, और उसने फिर छोड़ दिया. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian,
एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। जब ये बंगाली चला गया तो उसके बाद एक महाराष्ट्रियन वहाँ पे आया, उसका हेड बना मेकअप डिपार्टमेंट का, और उस महाराष्ट्रियन के हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आए। जैसे कि उनमें एक धारवाड़ कन्नडिगा आया। धारवाड़ कन्नडिगा मीन्स द पीपल ऑफ कर्नाटका नोन एज कन्नडिगा। तो एक कर्नाटका का व्यक्ति वहाँ आया, एक आंध्र प्रदेश का कोई आया हेल्प करने, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन मद्रास का आया, एंग्लो बर्मीज और एक एंग्लो बर्मा कंट्री और एंग्लो इंग्लिश उसका मिक्स करके कोई आदमी था वो आया, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और तमिलनाडु के लोकल लोग तो वहाँ आए ही। तो इतने लोगों ने उस महाराष्ट्रियन की हेल्प करी जो हेड बन के आया था मेकअप डिपार्टमेंट का जेमिनी स्टूडियोज़ के। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. तो ये सब चीज़ें हमको दिखाती हैं डाइवर्सिटी, इतने सारे लोगों की, इतने सारे अलग अलग एथनिसिटी के, कल्चर के, स्टेट्स के लोग वहाँ एक साथ काम करते हैं। तो ये हमको क्या दिखाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट शोज़ अ सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, मीन्स राष्ट्रीय एकता का एक जीता जाता नमूना दिखाया जा रहा है जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर। और ये राष्ट्रीय एकता जो नेशनल इंटीग्रेशन है ये काफ़ी पहले से चली आ रही है, जबकि दूरदर्शन और AIR ऑल इंडिया रेडियो में भी नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती थी, लेकिन उन बातों से पहले से ही जेमिनी स्टूडियोज़ में ये सब चीज़ें एग्जाम्पलीफाई की जा रही हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, राष्ट्रीय एकता का नमूना। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and locuns. Now, in these lines, Ashoka Mitran is getting very sarcastic. He's just not praising the work of makeup men. वो indirectly उनकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि निंदा ही कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन। तो बोलते हैं जितने भी मेकअप करने वाले लोग थे मेकअप डिपार्टमेंट के, उसको वो टीम या ग्रुप ना बोले, गैंग बोल रहे हैं। गैंग तो बदमाशों की होती है। तो एक्चुअली सरकाज़म दिखा रहे हैं किस तरह से वो नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करी जा रही है मेकअप मैन के बारे में। तो ये बोलते हैं कि ये गैंग ऐसी ख़तरनाक गैंग थी कि किसी भी डिसेंट लुकिंग कोई सभ्य सा दिखने वाले व्यक्ति का भी चेहरा बिगाड़ देती थी मेकअप कर करके, उसको राक्षस बना देती थी। हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, हाइडियस मतलब रिपल्सिव, हेटफुल, घिनौना, बिल्कुल अगली, एक अगली सा। क्रिम्सन मीन्स डीप रेड कलर, ह्यूड मीन्स कलर्ड, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस। तो ये यहाँ पे अशोका मित्रन बोलते हैं कि वो गैंग इतनी खतरनाक थी, कोई अच्छी सी खूबसूरत सा सभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति का चेहरा बिगाड़ के, लाल लाल रंग पोत के उसको एक लाल रंग का अगली सा राक्षस बना देती थी। मीन्स ही इज़ sarcastic in these lines. He's not saying they make the faces beautiful, but on the other hand, they make the people even more ugly. और ये सब जो मेकअप का आइटम्स था, ये ट्रक लोड्स में आता था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैनकेक ब्रांड के आइटम्स वहाँ आया करते थे। और पैनकेक ब्रांड के साथ साथ कुछ लोकल के बने हुए कुछ लोशन, कुछ पोशन, कुछ क्रीम वगैरह भी वो बना करके मेकअप किया करते थे। पोशन मीन्स इट इज़ टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड क्रीम। लोशन यू नो, स्किन क्रीम। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. और इस ज़माने में जो मेनली जो फिल्मों की शूटिंग होती थी वो इंडोर्स ही हुआ करती थी और केवल 5% फिल्म ही आउटडोर शूट की थी। दिस आई टोल्ड यू बिफोर। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. और फिर यहाँ पे सरकास्टिक होके अशोका मित्रन जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो सेट्स हैं और जो स्टूडियो हैं फिल्मों के, उनमें उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स एक्ट कर रहे हैं वो अगली लगें, अगली बने, उनके चेहरे ख़राब दिखें, जिससे कि वो मूवीज़ में ज़्यादा प्रेजेंटेबल अपीयर हों। मीन्स अगर वो कैमरे के आगे खूब मेकअप करके आते हैं तो वो मूवीज़ में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे, बट बिना कैमरे के अगर बाहर दिखेंगे तो वो इतना मेकअप, इतना आर्टिफिशियल उनके स्किन में रहता है कि वो अगली लगते हैं। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. Now the writer is saying that there was a hierarchy in the makeup department. Hierarchy means ranks. Every organization is a hierarchy. There is a senior, then there is a junior, then there is a further junior. The ranks are given in all the organizations. For example, in the army, there is a hierarchy. There is captain, there is major, then उससे senior, lieutenant colonel, then colonel. So in every organization there is a hierarchy. रैंक्स दी जाती हैं। सबसे ऊपर मैनेजर होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव होता है, उसके नीचे जूनियर एग्जीक्यूटिव,
इस तरह से हिरार्की होती है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही मेकअप डिपार्टमेंट जो था वहाँ भी हिरार्की थी, पोस्ट थी, सीनियर जूनियर, किसको क्या करना है। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो सबसे जो चीफ मेकअप मैन था वो क्या करता था, चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे उनका मेकअप करता था, यानी उनको बदसूरत बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उससे जूनियर, उससे जो नीची रैंक का था वो सीनियर असिस्टेंट था उसका, जो कि सेकंड हीरो एंड हीरोइन को मेकअप किया करता था। सेकंड नंबर के जो प्रोटागोनिस्ट होते थे फिल्मों के, उनका मेकअप करता था। उसके बाद था द जूनियर असिस्टेंट, द मेन कॉमेडियन एंड सो फॉर्थ। और उसी तरह से जो जूनियर असिस्टेंट था वो किसका मेकअप करता था, कॉमेडियन का, मेन कॉमेडियन का। और इसी तरह से हिरार्की चलती थी, जैसे जैसे रैंक कम होते जाती थी वैसे वैसे वो उतना अनइम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का मेकअप होता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और उस मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय इज़ अ ग्रुप डी और फोर्थ क्लास पोस्ट इन एन ऑफिस, मीन्स अ पियॉन टाइप ऑफ पर्सन। ऑफिस बॉय मतलब जो कहता है कि भैया चाय लिया, पानी लिया, फ़ोटो स्टेट कर दे, ये सब काम जो करते हैं ऑफिस बॉय करते हैं। तो उसी मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी था। और वो ऑफिस बॉय क्या करता था, जो भीड़ क्राउड का कभी कभी शूट करना होता था बहुत सारे लोगों का एक साथ, तो उस क्राउड का जो मेकअप करता था वो ये ऑफिस बॉय का काम था। क्योंकि हमें मूवीज़ में क्राउड की भी आवश्यकता होती है कभी कभी, several occasions we need lot of people assembled together for some scenes. So in that case this makeup boy used to made them up, all those people. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. Now in the bracket and with an exclamation mark, this line is being written here. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यानी कि ये बोल रहे हैं सरकाज़म दिखाते हुए कि देखो जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर मेकअप डिपार्टमेंट तक में एक ऑफिस बॉय था, एक पियोन था, एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर। तो मतलब पोएट हमको ये बताना चाह रहे हैं कि, ये राइटर हमको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह का वो स्टूडियो था, कितना बड़ा, कितना एलैबोरेट वो स्टूडियो था, कि जहाँ पे एक ऑफिस बॉय था एक डिपार्टमेंट के अंदर भी। जनरली पूरी संस्था के अंदर एक या दो ऑफिस बॉय होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था। तो कितना मतलब एलैबोरेट, कितना ग्रैंड वो रहा होगा। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and shipping it on the crowd players. Now, the writer is telling us that on certain occasions when there is a huge crowd assembled, there is a shoot which has to be taken of the crowd. So in those days, in those times, this office boy used to have makeup on all those people. तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, भीड़ वाला सीन होता था, तो उन सब का मेकअप ऑफिस बॉय करता था। और वो कैसे करता था, वो एक बड़े से बाल्टी में, एक वेसल में खूब सारा पेंट मतलब एक्चुअली पेंट का मतलब होता है वही मेकअप के जो आइटम होते हैं, क्रीम वगैरह का घोल बनाता था। और जैसे दीवार में पेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो उन सब क्राउड के लोगों पे पेंट किया करता था मेकअप का। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. उसका ये विचार रहता था कि स्किन का हर एक जो छिद्र है, हर एक जो पोर है वो कवर हो जाए उसके मेकअप से, ताकि मेकअप परफेक्टली बना रहे पूरे शूट के दौरान। He wasn't exactly a boy, he was in his early 40s. Now again द राइटर इज सेइंग, जो ऑफिस बॉय इज़ अ पोस्ट, वो तो एक पोस्ट होती है, उसमें बॉय है, लेकिन एक्चुअल में वो एक बॉय नहीं था, वो लड़का नहीं था। ही वॉज अ यंग, ही वॉज एन एडल्ट, ही वॉज अ सीनियर पर्सन, ही वॉज इन हिज 40s। वो 40-45 के करीब था, वो काफ़ी बड़ा आदमी था, बॉय नहीं था। हालांकि उसकी पोस्ट ऑफिस बॉय की थी, लेकिन वो खुद एक आदमी था 40 साल का। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर। और ये जो ऑफिस बॉय था 40 साल का, ये किसी ज़माने में स्टूडियोज़ में आया था सालों पहले, और ये किस उम्मीद से आया था, ये इस उम्मीद से आया था कि एक बहुत बड़ा स्टार एक्टर बनेगा, या एक टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, एक स्टोरी राइटर, एक लिरिक्स राइटर बनेगा। बट वो इनमें से कुछ भी नहीं बन पाया। अल्टीमेटली तो वो एक चपरासी या ऑफिस बॉय बन के रह गया। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और वो कुछ कवि भी सा भी था, उसके अंदर कुछ पोएट भी था एक अंदर से, काफ़ी कविताएं वो करता था, पोएट्री वगैरह बोलता था, तो कुछ कवि भी उसके अंदर था। वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। अब अशोकामित्रन जो राइटर हैं वो बताते हैं कि उन दिनों जब ये कहानी बता रहे हैं, पूरा ही किस्सा बता रहे हैं, जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर का हाल बता रहे हैं, तो
राइटर बोलते हैं कि उन दिनों जब वो राइटर वहाँ काम किया करते थे तो वो एक क्यूबिकल में बैठा करते थे। क्यूबिकल मतलब होता है, आपने देखा होगा, इन ऑफिसेज देर आर सर्टेन चैम्बर्स विच आर सेपरेटेड बाय सम पार्टीशंस, है ना, तो दोज आर नोन एज क्यूबिकल्स। तो उनको एक छोटा सा चैम्बर सा मिला हुआ था, टू होल साइड्स ऑफ विच वो फ्रेंच विंडोज़, और उसकी दोनों साइड्स में कुछ कांच की विंडोज़ जिन्हें फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है वो लगी थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। और राइटर को ये नहीं पता था उस समय कि ये जो विंडोज़ उसके ऑफिस में, उसके चैम्बर में लगी हैं, फ्रेंच विंडोज़ कहलाती हैं। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. और जब मैं उन क्यूबिकल में बैठ के अपना काम करता था, उसका काम क्या था, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स फाड़ना, उनकी फ़ाइल बनाना। तो जब मैं न्यूज़पेपर फाड़ा करता था रोज़ 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 कुछ ना कुछ, तो बहुत सारे लोग जेमिनी स्टूडियोज़ के सोचते थे कि जैसे मैं फालतू बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली ऐसा लगता था कि न्यूज़पेपर फाड़ रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। और अब यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि शायद उनके बॉस को भी ऐसे ही लगता था कि ये फालतू बैठे रहता है, दिन भर न्यूज़पेपर फाड़ता है। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो कभी कभी क्या होता था कि काफ़ी लोग वहाँ सोचते थे कि मैं निठल्ला बैठा हूँ, कुछ काम नहीं करता, तो दे immediately break into my cubicle, barge into my cubicle. Barge means interrupt or enter without my permission. एकदम बिना मतलब परमिशन लिए एकदम धड़ल्ले से अंदर घुस जाते थे लोग मेरे क्यूबिकल में, और मुझे लंबे चौड़े लेक्चर दिया करते थे, डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। सब आके मुझे उपदेश या लेक्चर देना शुरू कर देते थे और कुछ ना कुछ काम बताना शुरू करते थे कि तुम ये करो, जैसे कि मैं निठल्ला बैठा हूँ। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. और इसी दिन इसी तरह से एक बार वो द बॉय, बॉय मीन्स जो ऑफिस बॉय था, जो 40 साल का व्यक्ति था एक्चुअली, वो भी एक दिन मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था वो भी कई बार मेरे क्यूबिकल में आ जाता था। और एक बार वो आया और उसने आके वैसे ही मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। उसने कहा कि इस मेकअप डिपार्टमेंट में, जेमिनी स्टूडियोज़ में जो लिटरेरी टैलेंट्स हैं, मीन्स जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, क्योंकि ऑफिस बॉय अपने को काफ़ी इंटेलिजेंट मानता था, वो पोएट्री भी करता था। तो वो कहता था कि किस तरह से देखो लिटरेरी टैलेंट यहाँ बर्बाद हो रहा है इन लोगों के काम करने में, इन परवर्ट्स मतलब होता है एबनॉर्मल पीपल, इन परवर्ट्स के, बार्बर्स के, इन बार्बर्स के बीच में हमारा लिटरेरी टैलेंट बर्बाद हो रहा है। हमारी जो इंटेलेक्ट है, जो हमारे का नॉलेज है, इरुडिशन है, ये सब बर्बाद हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, स्टूडियो में। ये स्टूडियो तो केवल नाइयों के लिए, बार्बर के लिए और एबनॉर्मल लोगों के लिए, हम यहाँ पे क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपनी लाइफ। ऐसी बातें वो किया करता था। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। और जब मैं उसके लेक्चर सुना करता था तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि काश क्राउड की शूटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि उसका काम था क्राउड का मेकअप करना, और अगर वो क्राउड का मेकअप करने चले जाएगा तो वो मुझे यहाँ परेशान नहीं करेगा अपने उपदेशों से। तो मैं प्रे करता था कि क्राउड की शूटिंग हो और ये जाए यहाँ से और मुझे, मेरा दिमाग ना ख़राब करे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। क्योंकि अगर वो क्राउड की शूटिंग में नहीं जाएगा तो उसकी इस एपिक्स, उसकी लंबी लंबी कहानियों से, मुझे उपदेशों से मुझे कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotha Mangalam Subbu. और एक और चीज़, ख़ास बात वहाँ ये थी कि जो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर रहता था, तो जनरली ये देखने को मिलता था कि जो भी लोगों में फ्रस्ट्रेशन था, चाहे ऑफिस बॉय में हो चाहे किसी और में हो, वो फ्रस्ट्रेशन कुछ इस तरह से निकालते थे वहाँ के लोग कि किसी एक सिंगल पर्सन को टारगेट करते थे, सारा का सारा ब्लेम किसी एक सिंगल आदमी पे डाल देते थे, या तो डायरेक्टली, ओपनली, या फिर कॉवर्टली। कॉवर्टली मीन्स हिडन इन अ कंसील्ड मैनर। तो कभी कभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा का सारा गुस्सा किसी एक को विक्टिम बना के, किसी एक को अपना टारगेट करके उस पर निकाला करते थे वहाँ के लोग। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड। और जो ये ऑफिस बॉय था, जो ये मेकअप डिपार्टमेंट का जो मैन था, ये कन्विंस था, ये पूरी तरह से आश्वस्त था कि इसके जितने भी वोज हैं, वोज मतलब दुख हैं, इग्नोमिनी मतलब होता है डिसग्रेस या ह्यूमिलिएशन, जो इसका जो इसकी भी डिसग्रेस है, जो उसके दुख हैं, और जो उसके नेगलेक्ट है, नेगलेक्ट मतलब जो
इसको ओवरलुक किया गया, जो इसको केयरलेसली ट्रीट किया गया, जो उसकी इंपॉर्टेंस को कम किया गया, जो भी इसके साथ बुरा हुआ है मतलब वो केवल केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ है जिसका नाम कोथामंगलम सुब्बू था. अब यहाँ पे देयर इज अ नेम ऑफ अ कैरेक्टर, नेम ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, कोथामंगलम सुब्बू, उसका नाम यहाँ पे आया है. तो ये ब्लेम करता था ऑफिस बॉय कि सब सुब्बू की वजह से हुआ है. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़, और सुब्बू जो था स्टूडियोज़ का नंबर 2 था. Who was number 1? I told you earlier, number 1 was the owner, SS वासन. वो जो बॉस थे वो नंबर 1 थे, लेकिन सुब्बू जो था नंबर 2 था स्टूडियोज़ का. He couldn't have had a more encouraging opening in films than a grown-up makeup boy had. लेकिन सुब्बू ने काफ़ी स्ट्रगल्स किए थे नंबर 2 बनने में, अब इस मुकाम तक पहुंचने में. राइटर बताते हैं कि उनकी जो ओपनिंग थी फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड एनकरेजिंग नहीं थी, बल्कि मेकअप बॉय की जो प्लेटफॉर्म मेकअप बॉय को मिला था जो वो ज़्यादा बेटर था. लेकिन सुब्बू फिर भी आगे बढ़ गए थे. ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स. बल्कि इसके विपरीत जो सुब्बू था उसको काफ़ी चैलेंजेस का, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा था, काफ़ी एडवर्स कंडीशंस सर्कमस्टांसिस को फेस करना पड़ा था, काफ़ी विपरीत परिस्थितियों के बाद फेस करके ही सुब्बू आए थे. मेकअप बॉय तो काफ़ी आसानी से आ गया था. For when he began his career, there were no firmly established फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़. और जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था सुब्बू ने, तो उस ज़माने में उस समय कोई भी यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी या स्टूडियो भी नहीं हुआ करता था. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy. और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो सुब्बू की एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि ऑफिस बॉय जो हमारे हैं उनकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी थी. But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations. But he was a Brahmin. जो सुब्बू थे वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाती थी उस समय. अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा बड़े बड़े लोगों के साथ. अपनी बाय वर्च्यू ऑफ योर हायर कास्ट यू कैन एक्सेस, यू कैन अप्रोच द बिग शॉट्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. तो आप काफ़ी एफ्लुएंट मीन्स प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल पीपल, पावरफुल लोग, उनके बीच में आपका उठना बैठना हो सकता था आपकी हायर कास्ट की वजह से. तो ये एडवांटेज सुब्बू को मिला था कि वो ब्राह्मण थे, और इस वजह से काफ़ी ऊंचे बड़े लोगों के बीच में उनका उठना बैठना था, जिसकी वजह से उनको ब्रेक मिला, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े. एंड पीपल, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म. और सुब्बू में एक और ख़ास बात ये थी कि सुब्बू के अंदर एक क्षमता थी, एबिलिटी थी हमेशा खुश रहने की, हर समय वो खुश रहा करते थे. जबकि उनका फ्लॉप फिल्म में भी हुई थी एक बार, उन्हें एक फिल्म करी थी जो बिल्कुल बुरी तरह से पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी, उसके बावजूद भी वो काफ़ी खुश रहते थे. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर somebody, he could never do things on his own. और हमेशा सुब्बू दूसरों पर डिपेंड रहते थे, हमेशा हर किसी के लिए उनके पास कुछ ना कुछ काम रहता था, वो खुद कुछ नहीं कर पाते थे पूरी तरह से. बट his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. लेकिन उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी जो थी उसकी वजह से उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली थी. सेंस ऑफ लॉयल्टी मीन्स उनकी एक वफादारी जो थी अपने बॉस के प्रति. प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टूडियो, जो बॉस थे, जो हेड थे, वासन जो थे, उनके प्रति जो उनकी वफादारी थी उसकी वजह से उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी स्टूडियो में. और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी, जो भी उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, उसको अपने बॉस के फ़ायदे के लिए यूज़ किया. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. सुब्बू जो थे एक्चुअली ही वॉज मेंट फॉर फिल्म्स, ही वॉज टेलर मेड. वो बने ही पिक्चरों के लिए थे, फिल्म्स के लिए बने थे. वो इतने क्रिएटिव थे कि और कहीं वो फिट नहीं हो सकते थे, वो बने ही पिक्चरों के लिए थे, टेलर मेड. Here was a man who could be inspired when commanded. सुब्बू एक ऐसे मैन थे जो कि इंस्पायर करने पे, प्रेरणा देने पे और सही डायरेक्शन देने पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते थे, कमांड करने पे या इंस्पायर करने पे. द रैट, नाउ देयर इज अ स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कॉमास,
Please pay attention, please read it. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन बताई गई है कि जो रैट है, जो चूहा है, वो एक टाइग्रेस के साथ पानी के अंदर लड़ाई करता है और टाइग्रेस को मार भी देता है। और टाइग्रेस को मारने के बाद जो टाइग्रेस के जो छोटे छोटे कब्ज होते हैं उन पे उस चूहे को दया आती है और वो बड़े प्यार से उनको रखता है, टेंड करता है, उनकी केयर करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब ये जो प्रोड्यूसर हैं वो बोलते हैं कि ये सीन जो है रैट और टाइग्रेस की लड़ाई का, ये मैं कैसे इसको करूं, कैसे इसको इनैक्ट करूं, कैसे इसको शो करूं। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो जो ये स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि सुबू की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, उसकी एक्यूमेन, उसकी प्रावेस दिखाने के लिए। तो प्रोड्यूसर बोला करता था कैसे इस तरह के सीन को मैं डिपिक्ट करूं, तो सुबू तुरंत 4 तरीके निकाल देता था कि इस तरह से रैट अपना प्यार दिखाएगा कब्स को, कैसे वो टाइगर्स को हटाएगा। तो सुबू इतना क्रिएटिव था कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स, इस तरह के मतलब ल्यूडिक्रस कह सकते हैं आप, रिडिकुलस टाइप के सीन को भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से शो कर सकता था, वो इतना क्रिएटिव था। विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग मीन्स प्रोजेनी, जो बच्चे होते हैं किसी के, उसे ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। विक्टिम्स मीन्स जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, जिसके जैसे टाइग्रेस को रैट ने मार दिया तो टाइग्रेस विक्टिम हुई। अफेक्शन मीन्स लव। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। तो सुब्बू ये 4 तरीके बनाता था और अपने प्रोड्यूसर को दिखाता था, लेकिन प्रोड्यूसर फिर बोलते थे गुड, ये अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत इफेक्टिव है, मुझे नहीं लगता कि ये काम कर पाएगा एक्चुअल में। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। और जैसे प्रोड्यूसर ऐसा बोलता था तो सुब्बू तुरंत 14 और तरीके निकाल देता था उसी सीन को करने के। पहले तो 4 निकाले, बट 4 में भी प्रोड्यूसर पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सुब्बू ने 14 ऑल्टरनेटिव्स और दे दिए उसी के। यानी ये बताया जा रहा है कि कितना क्रिएटिव था सुब्बू, कितना अच्छा उसके अंदर स्किल्स थी, कितना उसके अंदर एक्यूमेन था फिल्मों के लिए। तो वो 14 और ऑल्टरनेटिव्स उसने निकाल दिए तुरंत। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ सुब्बू हैज़ बीन पोर्ट्रेड थ्रू दीज लाइन्स। So I think this is enough for today's video. In our next video we'll continue with the further chapter. Till then I request all of you to please revise this chapter, and if you face any difficulty in anything, please you can drop a message in WhatsApp. Take care. Goodbye.